Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, as I see many comments that people are saying, please make a video on top and bottom criteria in structural geology. So, here I am. First of all, thank you so much for giving so much love on this topic because I see the views are many on the structural geology and people wants more content on this topic. So, here I am for you. Let's start. So first we should understand what is top and bottom criteria in the structural geology. As you see in the image, it's a rock and it's a layer. You can see the beddings, rock beddings here, and in the top you can see the younger flame structure. There is a finer line and here is a coarser line. When you go top to bottom it's a fine line, and if you go top like bottom to top it's fine line, and then top to bottom it's again coarser line. So it's old flame structure we can see here in the rock bedding. So first we need to understand what is the topic. So our topic is top and bottom criteria in the structural geology. Imagine standing in front of a folded rock layer that has been turned upside down for millions of years. How can you tell which way was originally up? It's a task. That's where top and bottom criteria come in secret language of rock that helps geologists decode the earth's twisted part. So this is the twisted part of the rock. So you can see the field geologist top and bottom indicator. He was just observing. Here it's a cross bedding truncted at the top, then graded bedding with coarser grain at the original bottom, now on the top, and then fossilized mud cracker on the bedding plane that is facing downside. So how can you decide which is upside down or which is downside, and how you can decide that we can understand in this chapter. Let's move forward into the definition. So top and bottom criteria, also called way up indicator or Younging indicator, are sedimentary and structural feature that indicate the original Younging direction, that is which side of the rock was originally the top when it was deposited. तो जब rock deposit हुआ, ठीक है, उसके बाद जो rock की साइड थी वो कौन से साइड up है और कौन से साइड down है, ये हमें डिसाइड करना है. और यही टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया की डेफिनेशन है, दैट सेडिमेंट्री एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स इंडिकेटिंग द ओरिजिनल यंगिंग डायरेक्शन. ओके, विच मीन्स कहाँ से जो फोल्ड है वो स्टार्ट हुआ फॉर्म होना, वो डायरेक्शन को हम बोलेंगे टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया. देन लेट्स सी टाइप ऑफ क्राइटेरिया. सो फर्स्ट वी हैव प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर. This feature formed during sediments deposit and directly indicate the yonging direction. So when you see, जब भी sedimentary rock बनते हैं तो igneous से sedimentation का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे sediments एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो एक डायरेक्शन में बैंड होने लगते हैं जिसको हम yonging डायरेक्शन बोलते हैं. As you can see in the image, प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर वे अप इंडिकेटर. फर्स्ट हम देखेंगे ग्रेडेड बेडिंग. तो यहाँ पे जब हम ऊपर जाने लगते हैं बॉटम टू टॉप, वहाँ पे हमको फाइन ग्रेन दिखते हैं. फिर मिडल में हमको मीडियम एंड सैंड ग्रेन दिखते हैं. एंड जब हम वेरी टॉप में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वे अप में हमको फाइन ग्रेन दिखते हैं एंड बॉटम में हमको बिग कोर्स दिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स सैंड. जहाँ पे हमें क्रॉस बेडिंग देखने को मिलेगी कुछ कुछ रॉक्स में. जैसे हम वे अप डायरेक्शन में जाते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको क्रॉस बेडिंग कहते हैं. कई बार आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा जो रॉक्स होते हैं उन पे ऐसे मार्क्स आते हैं वेवी टाइप के, तो इसको हम रिपल मार्क्स बोलते हैं. शार्प क्रिस्टल राउंडेड, ये ऐसे शेप हमें दिखने को मिलता है तो हमें समझ जाना है कि ये रिपल मार्क्स है. एंड दिस इमेज हेल्प यू टू आइडेंटिफाई the type of sedimentary structure which is very important in field geology. हमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वे अप में, सो इट इज़ मड क्रैकर. लोड कास्ट एंड फ्लेम स्ट्रक्चर, जैसे हम
कोई भी कैंडल जलाते हैं तो हमें एक जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो सेम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा रॉक में, जिसको हम लॉडकास्ट एंड फ्लेम स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। वे अप डायरेक्शन में जाते जाते इधर भी आप देखिए जो ग्रेन्स है वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे हमें वी शेप का ओपन वे दिख रहा है, सी ये देखिए। तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मड क्रैकर है। Actually, by using this image, it's really very easy to identify in field geology what kind of structure it is on the rock. जैसे कि हम फीचर्स की बात करें, हमने बात की ग्रेडेड बेडिंग, फाइन ग्रेन होते हैं अपवर्ड, और फिर विजुअल एनिमेशन आप देख ही सकते हैं इधर। देन क्रॉस बेडिंग, द ट्रंकलेटेड टॉप ऑफ क्रॉस एंड ट्रंकलेटेड टॉप में हमको बेड यूनिट अपवर्ड दिखते हैं क्रॉस बेडिंग में, लाइक सी दिस। एंड देन रिपल मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया वेवी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देन मड क्रैकर, वाइडर एट द टॉप एंड टैपर डाउनवर्ड, जैसे ही हम नीचे साइड जाते हैं वो नैरो होते जा रहे हैं बट वाइड है ऑन द टॉप। देन जो फ्लेम स्ट्रक्चर हमने बोला, डाउन साइड पे बर्गस जैसा दिखता है एंड अपवर्ड में हमें ज़्यादा ओपन दिख रहा है ये गैप। फिर सोल मार्क्स भी होते हैं जो इरोशन से क्रिएट होते हैं। जैसे इरोजन होता है सॉल रॉक का, तो उसमें क्या होता है, सॉल मार्क्स हमको दिखने लगते हैं इन द आउटक्रॉप पैटर्न। मैंने आउटक्रॉप पे भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। देन सेकेंडरी इंडिकेटर, वी ऑल्सो कॉल दिस एज अ पोस्ट डिपोजिशनल इंडिकेटर। इसमें भी 4 टाइप्स मैंने इधर दिखाए हैं विजुअली, सो इट इज़ रियली ईजी टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे हम देखेंगे फीचर वेसिकल्स इन लावा फ्लो। तो जब इग्नियस रॉक बनते हैं उसके पहले जो लावा होता है उसमें भी हमें एक फ्लो देखने को मिलता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। ये लावा है और लावा के अंदर वेरी फाइन हमको रॉक्स देखने को मिलेंगे, उनके जो सेडिमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। जो टॉप साइड हम जाएंगे वे अप तो वो कॉन्सेंट्रेट दिखेंगे एट द टॉप, मोर एबेंडेंट नियर द टॉप ड्यू टू द ट्रैप्ड गैस। ये क्यों होता है, बिकॉज जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होता है और लावा निकलता है तो जो गैस है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है ऑन द टॉप। दैट्स वाई जो टॉप का एरिया है वो हमको ज़्यादा ग्रीनी दिख रहा है और वहाँ पे हमको ये जो गैस बबल्स है वो दिख रहे हैं। और इन गैस बबल, ये जो गैस बबल है वो जब ख़त्म हो जाते हैं और जो लावा ठंडा होने लगता है वैसे ही हमारे जो इग्नियस रॉक्स है वो फॉर्म होना चालू होते हैं और इसी से हमको बेसाल्ट रॉक मिलता है, as I give the example. Then pillow lavas. So pillow lavas हमको pillow structure की तरह देखने को मिलते हैं, like this, bubbles lower part and concave top. तो ये जो bubbles हैं इनका जो lower part है उनको वो structure को जब हम zoom करके देखते हैं तो हमको ये pillow lavas दिखते हैं, कुछ इस shape के होते हैं। वे up में हमको ये direction में ये shape हमको देखने को मिलेगा in the pillow lavas. Then metamorphic grading, जब इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं तो उसमें मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है। ये पूरी रॉक साइकिल की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो वो स्ट्रक्चर हमको इस टाइप का दिखेगा, फाइनिंग अपवर्ड इन ग्रेन साइज़। जो ग्रेन साइज़ है वो टॉप की तरफ जाते हुए एकदम स्मॉल हो जाएंगे एंड बॉटम में वो थोड़े बड़े होंगे। देन फॉसिल ओरिएंटेशन, कॉन्केव साइड अपवर्ड, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं इसमें भी हमको इस तरह का फॉसिल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। शेल के अंदर जो है वो सारे सेडिमेंट्स हो जाते हैं इधर, और यहाँ पे जैसे ही आप अपवर्ड की तरफ जाएंगे टॉप की तरफ तो आपको ज़्यादा सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसको वो सेडिमेंट्स जो है वो फॉसिल में स्टक हो जाते हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज फॉसिल ओरिएंटेशन। देन इम्पोर्टेंस इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। सो हमने जाना किस टाइप के यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में भी हमने जाना किस किस टाइप के हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। देन हमने सेकेंडरी में जाना किस किस टाइप के इंडिकेटर हमको देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये जानने का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंडिकेटर इन द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। सो टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया इज़ एसेंशियल, इट इज़ वेरी एसेंशियल। इट डिटरमाइन फोल्ड ओरिएंटेशन, it differentiate between the anticline and syncline and recognize overturned beds.
सो बेडिंग किस साइड है, एंटीक्लाइन है, सिंक्लाइन है, कौन से टाइप के फोल्ड ओरिएंटेशन है, कौन से टाइप के स्ट्रक्चर है, कौन से टाइप के मार्क्स है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट, ये सब हमें जानने को मिलता है टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया में. एंड दे आर की टूल फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द डिफॉर्मेशन हिस्ट्री ऑफ रॉक. बिकॉज जब तक हमें टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, हम फील्ड जियोलॉजी में हाउ कैन वी मैप दैट ओके ये पिलो लावा है, ओके ये जो है वो वेसिकल्स है इन द लावा फॉर्म बिकॉज ऑफ गैस, दिस इज द मेटामॉर्फिक ग्रेडिंग, दिस इज फॉसिल ओरिएंटेशन. या व्हेन वी सी this type of marks, it's known as mud cracker. Okay, now we can see this is flame structure because it look like flame, and on the top side the rock grains are very small, very fine. So we can identify this thing by understanding the top and bottom criteria, and it is very easy and very important as well as. नाउ हम देखेंगे फील्ड एप्लीकेशन कि हम ये टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया को हमारी फील्ड स्टडी में कैसे हेल्पफुल बना सकते हैं. सो इन फील्ड मैपिंग जियोलॉजिस्ट आर कलेक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल इंडिकेटर्स और मल्टीपल योंगिंग इंडिकेटर. योंगिंग इंडिकेटर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जब बेडिंग शुरू होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी उसको हम बोलते हैं योंगिंग इंडिकेटर. इट इज़ अक्रॉस एन आउटक्रॉप टू क्रिएट अ वे अप मैप, और उसमें भी एक पैटर्न बनता है आउटक्रॉप में. This help to determine the structural position of each bed and reconstruct original sequences. So यहाँ पे हम देखेंगे field application creating a way up. So सबसे पहले जब भी हम कोई field study पे जाते हैं, कोई बड़ा सा माउंटेन देखते हैं, तो हम ये डायरेक्शन नोटिस करते हैं. So यहाँ से हम शुरू करते हैं टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना. देन हम सिंथेसिस करते हैं उसका कि कौन सी डायरेक्शन में कहाँ पे कौन सा मैप बन रहा है, और पूरा जो मैप है वो हम लिखते हैं हमारी जो फील्ड स्टडी की बुक होती है उसमें. देन हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं ओके दिस इज़ वे अप, दिस इज़ वे डाउन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फाइन ग्रेन, दिस इज़ द कोर्स ग्रेन, एंड दिस इज़ द रिपल स्ट्रक्चर. We can identify by primary indicator and secondary indicator as we discussed before. Now what are the common mistakes and tips for the field study? So do not rely on the features. Don't only rely on the features कि okay mud cracker दिख रहा है तो mud cracker ही होगा. You have to just cross check multiple indicator. Maybe you are the new one who can just identify a new feature on the rock. Then second is metamorphism may alter or erase indicator. So कभी भी कोई रॉक का सेडिमेंटेशन के बाद जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो बहुत बार क्या होता है, जो रिपल मार्क्स है, मड क्रैकर्स है, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बार इरेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इरोजिनेशन, और इसकी वजह से जो इंटरप्रेट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ऑलवेज रिकॉर्ड द ओरिएंटेशन, स्ट्राइक एंड डीप. स्ट्राइक एंड डीप के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जाके वीडियो देखिए प्लीज़. So always record the orientation when mapping. So these are some common mistakes and tips for the determination of way up direction. Cross check, don't rely on the structure. Then be aware of metamorphism. Metamorphism की वजह से जो ये marks है वो erase हो सकते हैं, जिसको हम erosionation भी बोलते हैं. And record the orientation, कौन सा angle है, deep है, strike है, ये सब हमको record करना है क्योंकि हमारी final determination में ये हमको बहुत ज़्यादा help करता है. Now conclusion, top and bottom criteria are more than just a rock feature. They are not just a rock feature. They are the basic of geology, you know. So they are geological time marker. It's a written in stone. So we can see the marks, how beautiful it is. They let us read Earth's story even when the pages are folded, faulted and flipped upside down. सो फोल्ड, फीचर, आउटक्रॉप पैटर्न, स्ट्राइक, डीप, ये सब हमें जानने को मिलता है जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया की वो क्लियर है. दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू हैव एनी सजेशन अगर आप चाहते हो मैं और किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, जैसे कि मुझे बहुत सब्सक्राइबर ने बोला था टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया पे वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने बनाई है. आई नो आई एम सो लेट
और मैंने ये स्टोरी भी बताई है क्यों मैं लेट हूँ, बिकॉज मैं अभी यूके में हूँ, मैं अपना मास्टर डिग्री कर रही हूँ एंड इट इज़ सो टफ, टाइम नहीं मिल पाता है. सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. या दैट्स इट. थैंक यू गाइज. बाय.